So good evening, everyone. Once again, basically, I have received many doubts that you are not able to solve the last part of the induction step. That is, after you took LHS, you are not able to prove that it is equal to RHS. So don't worry. In this today's class, I'm going to solve. Help you how to prove that LHS is equal to RHS. Don't worry. Clear? Means basic step I'm not going to teach because basic step I know everyone has become perfect and it's a very simple thing. And also I've received a message that do you need to skip basic step? No, basic step also carries marks. Basic step is also a part of this particular chapter, matlab sum ka ye part hai basic step, so you cannot skip that. Okay, so let me begin from sum number 3. So question number 3, we have P of n, which is 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square, and on the right hand side we have 1 by 6 n plus 1 and 2n plus 1. So everyone note down the first two questions का जो इंडक्शन स्टेप है मैं पूरा सॉल्व करूंगा, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा बस इतना ही, बट जो 3 और 4 है इसका मैं पूरा सम सॉल्व करके मैं तुमको दिखाऊंगा. ओके, तो एक बार ध्यान से नोट करना सबको. ऑलराइट, प्लीज नोट डाउन एवरीवन. सो आई एम स्टार्टिंग विद इंडक्शन स्टेप. So you know that in induction step we assume that, let us assume that P of K be true. तो अगर हम लोगों ने assume किया कि P of K true है, इसका मतलब P of N जो given statement है, अगर मान लो मुझे P of K निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका है. N को हम लोगों ने K से रिप्लेस किया है, तो जहां जहां N दिख रहा है वहां पे हम लोग K लगा देंगे. So we have 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot 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 plus k square, and on the right hand side we have 1 by 6 k plus 1, n की जगह k तो k plus 1, 2k plus 1, and mark it as equation number 1. उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखना है. याद है तुम लोगों को मैंने बताया था that now we shall consider that P of K plus 1 is true whenever P of K is true. For this we have to prove P of K plus 1. Now जैसे हम लोगों ने P of N से P of K निकाला, N की जगह K रिप्लेस करके, ठीक वैसे ही P of K plus 1 निकालने के लिए जहां पे तुमको n दिख रहा है वहां पे हम लोग n plus 1, सॉरी जहां पे n दिख रहा है अगर हम लोगों ने n की जगह k plus 1 रिप्लेस किया तो जहां जहां राइट में n है वहां पे k plus 1 लगा. तो फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि जैसे हम लोगों ने P of n से P of k निकाला, कैसे n को k से रिप्लेस कर दिया. देखो एवरीवेयर जहां पे n है वहां पे हम लोगों ने n को k से रिप्लेस कर दिया, तुम लोग देख रहे हो. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मुझे P of K plus 1 निकालना है तो अब मैं n की जगह K plus 1 रिप्लेस कर दूंगा. मतलब बाकी जितना चीज है सब वैसे रख दूंगा मैं. I will keep everything as it is, only I will be replacing n with K plus 1. So if I replace n with K plus 1, if I replace n with K plus 1, so I will get K plus 1 ka whole square. Please observe properly. So in today's class, if you observe properly, you'll find that this chapter will become very easy. I know that on the first day this becomes a difficult task for everyone, but second day देखना सब कोई comfortable हो जाएगा. तो जहां पे n है वहां पे मैंने k plus 1 लगा दिया. देखो राइट साइड में जहां पे n है वहां पे अगर हम k plus 1 लगाते, इस n की जगह अगर k plus 1 आ जाए तो मुझे k plus 1 को ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इस n की जगह k plus 1 हम लगाते हैं तो बताओ तो मुझे k plus 1 कितना बन जाएगा.
ये बन जाएगा k plus 2. Please make sure that you keep it in one bracket and do not multiply. Keep it in bracket. जैसे यहाँ पे 1/6 है, जैसे यहाँ पे n है, तो n की जगह k plus 1 है तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा. देखो ये एक ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ रखना. मतलब n की जगह k plus 1 लगा के सॉल्व करके ब्रैकेट के अंदर ही रखना उस चीज को. ठीक है. नेक्स्ट, इस जगह पे n की जगह अगर हम k plus 1 लगाते हैं तो फिर ये सॉल्व करके 2k plus 2 plus 1 आता है, दैट इज 2k plus 3. ठीक है. मतलब अपने को ये प्रूफ करना है. याद होगा मैंने लास्ट डे बताया था कि p of k plus 1 का जो लास्ट टर्म है उसके पहले एक स्पेस लिखना, और इस स्पेस में जो है हम लोग क्या लिखते हैं बताओ तो, p of k का लास्ट टर्म को वहां पे ड्रॉप कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं. तो बताओ तो इस जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? k स्क्वायर. ऑलराइट. अब हम लोग इसका LHS ले लेंगे. ठीक है. इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. ठीक है. दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड ले लिए. अब देखो ध्यान से, तुम लोगों को पता है कि p of k plus 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें यहां से लेकर के और यहां तक जो टर्म्स है, मतलब ये कितना टर्म्स है? k टर्म्स है. कितना टर्म्स है? k टर्म्स. वो p of k से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. देखो p of k से उसका हम वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं. देखो ये चीज ही तो है ना. और इसका वैल्यू क्या है बताओ तो? इसका वैल्यू है 1/6, उसके बाद k into k plus 1 into k 2k plus 1. ना बहुत लोगों का हमने सॉल्यूशन में क्या देखा है कि बहुत लोग जो है इसके मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में पड़ गया और वहां से काम गड़बड़ हो रहा था. ठीक है. बहुत लोग क्या कर रहा था कि इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में लग गया था. प्लीज डू नॉट मल्टीप्लाई, रादर देन मल्टीप्लिकेशन थिंक ऑफ कि ये चीज कैसे, रिजल्ट कैसा है. तो देखो रिजल्ट यहाँ पे पूरी फैक्टराइज फॉर्म में, फैक्टराइज मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अपने लोग का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म में लाना होगा रादर देन मल्टीप्लिकेशन. ऑलराइट एवरीवन. तो यहाँ पे मैंने यहां से लेके यहां तक का जो टर्म्स है वो मैंने p of k से रिप्लेस कर दिया. देखो ये. उसके बाद प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर है. तो ये मैंने कहां से रिप्लेस किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट. अब देखो हम लोग को अपना टारगेट पता है क्या लाना है, एकदम क्लियर है अपना टारगेट. तो सबसे पहले जो है देखो एक बार कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन क्या है. टेल मी, बताओ क्या कॉमन है इसमें और इसमें? क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? k plus 1. एब्सोल्युटली करेक्ट. k plus 1 कॉमन दिख रहा है. तो हम आराम से k plus 1 पहले कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? पहले 1/6 बच जाएगा, उसके बाद into k बच जाएगा, उसके बाद into 2k plus 1 बच जाएगा, और प्लस के बाद इसमें से अगर हम k plus 1 कॉमन ले लें होल स्क्वायर में से, एक और k plus 1 का फैक्टर बच जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो, अब हमारे पास इसमें कॉमन का कोई ऑप्शन नहीं बचा है. कॉमन जो था वो हम लोगों ने ले लिया. अब हम क्या करेंगे देखना एक बार, जो ब्रैकेट के अंदर जो बचा है ये जो पार्ट है इसको हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे. ओके. ये जो ब्रैकेट का पार्ट है इसका हम एलसीएम लेके सिंपलीफिकेशन करेंगे. सो वी हैव k plus 1. अब बताना एक बार 1 और 6 का एलसीएम क्या होगा बताओ? 1 और 6 का 6. तो यहां पे बच जाएगा k into 2k plus 1 plus 6 times k plus 1 डिवाइडेड बाय 6. अब हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लेते हैं. दैट इज 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6. देखो इस स्टेप के बाद में बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज डाउट आया था कि क्या मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. बिल्कुल फैक्टराइज करना है. क्यों? देखो मुझे ये कैसे पता चला जो मैंने तुमको बता दिया कि फैक्टराइज करना है, ये मुझे अपने आप से नहीं पता चला. मैंने राइट साइड देखा. क्या देखा? कि मुझे आंसर k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 चाहिए. तो डेफिनेटली मुझे k plus 1 मिल चुका है, तो बाकी को फैक्टराइज करके मुझे ये मिल जाएगा डेफिनेटली. देखो यार k plus 1 मिल गया है, तो अगर हम बाकी जो इस एक्सप्रेशन इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो डेफिनेटली हमको k plus 2 into 2k plus 3 मिलना चाहिए मैंने बोला, लेकिन फैक्टराइज करो. तो फैक्टराइज अगर हम करें, एक बार कॉपी करने यहाँ तक देयर इज नो स्पेस हियर. So note down everyone, we have k plus 1 into, if you factorize this expression, we have 2 6 या 12, and 12 को कैसे factorize करेंगे कि हमको 7k मिल जाएगा. So it is clearly 2 to the 4, 4k plus 3k. So it is 2k square
प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 होल थिंग डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है 2k, तो बच जाएगा k प्लस 2। इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 3, तो बच जाएगा k प्लस 2। So we are finding that we have k plus 1, all right, into k plus 2 into 2k plus 3 whole thing divided by 6। देखो ये RHS में है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि इतना तक कर लो ना, इसके बाद तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है ना, और आज सारा क्लियर हो जाएगा। और देखना फिर उसको रिपीट करना बहुत इजी लगने रहेगा। So everyone note down the last part of question number 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में p of k तुमको पता है क्या है। p of k है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में है 1/3 k 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1। ये है तुम्हारा p of k। अब उसके बाद p of k plus 1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे टू प्रूफ, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट। अब अपने लोगों को प्रूव करना है p of k plus 1। तो मैंने बताया था ना कि p of k plus 1 क्या करना है, जस्ट n के जगह पे, ठीक है ना, n के जगह पे क्या करना है तुम लोगों को, n के जगह पे बस k plus 1 लगा देना है। तो फिर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस। अगर हम मान लो अगर हम n के जगह k plus 1 लगा दें, तो बताओ आपने अपनी कॉपी में देखना, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर k plus 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई करके क्या आ रहा है देखो, इट इज 2k plus 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2k plus 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, तो इसके पहले जो स्पेस मैंने छोड़ा है, स्पेस पे क्या टर्म, कौन सा टर्म आएगा बताओ तो। सर 2k minus 1 whole square। इट विल बी 2k minus 1 का होल स्क्वायर। ये चीज मैंने अब एकदम क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। और राइट साइड में जहां जहां n दिख रहा है ना, मैंने p of n लिखा नहीं है, ठीक है, जहां जहां p of n में n दिख रहा है, n की जगह k plus 1 लगा। तो देखो यहाँ पे 1/3 दिख रहा है, 1/3 बाहर है, तो k दिख रहा है, सॉरी n दिख रहा है, n की जगह k plus 1 लगा। और याद रखना इसको ब्रैकेट में क्लोज करना मत भूलो। देखो ये ब्रैकेट के अंदर 2k minus 1 है, आई मीन 2n minus 1 है, तो अगर हम उस n की जगह पे k plus 1 लगा दें, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2k plus 1 आ जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर 2, उसके बाद n की जगह अगर हम लोग k plus 1 लगाएं, तो बताओ तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2k plus 3। I hope it is clear everyone. I hope no one is confused and I think everyone got p of k plus 1 as this only. Please reply once. क्या मिला यहाँ तक? Yes, sir. किसी का कोई डाउट नहीं है ना? यस, कोई ऐसा है जिसको यहां तक डाउट है? एनीवन? नहीं। अब हम इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है, अब हम इसका LHS ले लेते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k plus 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक जो है, ये p of k का ही तो लेफ्ट हैंड साइड है देखो, और उसको हम अगर रिप्लेस कर दे RHS से, तो ये हो जाएगा 1/3 k 2k minus 1 2k plus 1। यस, सेकेंड स्टेप में 2 into k plus 1 minus 1 नहीं होएगा? सेकंड स्टेप, अच्छा ये वाला क्या? हाँ सर, 2 into k plus 1 minus 1। एक सेकंड, अब कौन सा बताओगे एक बार, LHS या RHS, कौन सा? सर LHS में, LHS का लास्ट टर्म, LHS का लास्ट टर्म। अच्छा मैं एक बार मैं ये चीज को एक बार एक सेकंड जस्ट अ मिनट, ध्यान रखो। अब सुनो, p of n, तो p of k क्या होगा, n की जगह k, ये आ गया ये वाला। p of k plus 1 मतलब क्या, जहां पे n है वहां पे k plus 1 लगा, जहां पे n है n की जगह k plus 1, n की जगह k plus 1, n की जगह पे k plus 1,
n के जगह पे k + 1। ऑलराइट, अब देखो तो यहाँ पे अगर हम n के जगह k + 1 लगाते हैं तो ये 2 ब्रैकेट के अंदर n के जगह k + 1 आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करके 2k + 2 - 1 दैट इज 2k + 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है। उसके पहले क्या आएगा, p ऑफ k का लास्ट। ये तो क्लियर हो गया। राइट साइड में 1/3 है, n के जगह k + 1, ये रहा k + 1। इस n के जगह k + 1 अगर हम लगाते हैं तो 2k + 2 - 1 देखो तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2k + 1 आ रहा है। और उसके बाद अगर हम इस n के जगह k + 1 लगाते हैं तो फिर ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2k + 3 आ जाएगा। अब बताओ कंफ्यूजन क्लियर है? यस सर। ओके, क्या किया था तुमने गलती, बताओ मुझे क्या गलती थी? मैंने मुझे 2k लिख दिया था। ठीक है, 2k। क्लियर हुआ? तो अब देखो तो यहां से लेके यहां तक मैंने रिप्लेस कर दिया p ऑफ k का RHS से प्लस 2k + 1 का होल स्क्वायर। ये कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम लोग कॉमन लेंगे, कभी भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम लोग कॉमन देंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो एक बात बताओ, तो दोनों में कॉमन क्या है बताओ? यस यस, क्या कॉमन है? k + 1। 2k + 1 कॉमन है। तो अगर हम 2k + 1 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, k × 2k - 1 डिवाइडेड बाय 3 पहले आ जाएगा, k × 2k - 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा प्लस 2k + 1। अब एलसीएम ले लो, जैसे पिछला सम था एकदम ठीक वैसे ही ये भी आ गया। सो वी हैव 2k + 1 और ये हो गया 2k² + 5k + 3। अगर हम फैक्टराइज करें फिर ये हो जाएगा 2k + 3k इन दोनों में 2k कॉमन ले लेना तो बच जाएगा k + 1। इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन ले लेना तो बच जाएगा k + 1। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, k + 1, तो बच जाएगा 2k + 3। मैच किया आगे से, ठीक है? देखो ये, ठीक है ना, मैच किया तो ओके एवरीवन, कॉपी कर। अब मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, सो p ऑफ k + 1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ k इज ट्रू, हेंस बाय pmi, वो सब मैं नहीं लिख, कॉपी करेंगे। Now see everyone, question number 5. So p of n is given to you, which is 2 + 2 square plus 2q plus 2 to the power n, and RHS is 2 into 2 to the power n minus 1. So first of all we assume that p of k is true. तो p of k क्या होगा, सिंपल, जहां पे n है वहां पे हम लोग k रिप्लेस कर देंगे। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर लेंगे और प्रूफ करना है हम लोग को p of k + 1। तो p of k + 1 क्या हो जाएगा, जहां पे n दिख रहा है वहां पे हम लोग k + 1 लगा देंगे। अगर हम n के जगह k + 1 लगा दें तो पावर में 2 to the power k + 1 आ जाएगा, 2 to the power k + 1 आएगा। राइट साइड में 2 into ब्रैकेट के अंदर 2 के पावर पे k + 1 और ये -1 इधर है, ठीक है, ये पावर पे नहीं जाना, ले जाना हमारे इसको। और बताना एक बार, ये टर्म के पहले कौन सा टर्म है, p of k जो है उसका लास्ट टर्म। अब मैं इसका LHS ले लेता हूं।
देखो यहां से लेके यहां तक का जो टर्म्स है इसका मुझे पता है रिजल्ट क्या है, वो राइट से इक्वेशन नंबर 1 से कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम लोग को लाना क्या है, हम लोग को लाना है, प्लीज लिसन इन दिस पार्ट वेरी वेरी केयरफुली। हम लोग को ब्रैकेट के बाहर पहले 2 कॉमन लाना है। क्या लाना है ब्रैकेट के बाहर? 2 कॉमन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को इसको ब्रेक करना सिखाता हूँ। देखो हम लोग को पता है कि x टू द पावर m प्लस n को हम लोग x टू द पावर n into x टू द पावर n लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग 2 टू द पावर k प्लस 1 को 2 टू द पावर k into 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रूफ के हिसाब से देखो मेरा ये कोई दिमाग नहीं है, मैंने कोई अपने से दिमाग नहीं लगाया, पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं। मैंने प्रूफ पार्ट को देखा और मुझे दिखा कि 2 कॉमन लेना है पहले मुझे। ठीक है, मुझे पहले 2 कॉमन लेना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या 2 कॉमन दिख रहा है? देखो तो एक बार, इसमें और इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। हाँ सर। ये देखो 2 कॉमन है। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा बताओ तो? यहाँ बच जाएगा 2 टू द पावर k माइनस 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 टू द पावर k। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। कितना हम लोग आराम से सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग का आदत जो है ये इतने बोलने के बावजूद भी ये नहीं छोड़ता है कि बस वो लेफ्ट साइड सॉल्व करते रह जाता है, पता नहीं सोचता क्या है। देखो हम अगर राइट साइड ना देखें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमको लाना क्या है? तो राइट साइड मुझे हमेशा देखना चाहिए। अब देखो 2 इंटू तो मिल गया, अब मुझे ब्रैकेट के अंदर की पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर का पार्ट को सॉल्व करके मुझे लाना क्या है? लिसन वेरी केयरफुली, मुझे लाना है 2 टर्म्स। एक है 2 टू द पावर k प्लस 1 और दूसरा है माइनस 1। ठीक है, तुमको यहाँ कहीं माइनस 1 दिख रहा है? देखो ब्रैकेट के अंदर, यस ये देखो। इसका मतलब अपने लोगों को ये कैलकुलेशन में इसको यूज नहीं करना है। मतलब माइनस 1 को यूज करके क्या फायदा है? समझ में आया तो बात? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रूफ पार्ट में जो है 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा देखो एक बार, माइनस 1 जैसा है वैसे मैं लिख दिया, देखिए। ठीक है, अब देखो 2 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k बचा है। Now tell me students, what is x plus x? It is equal to 2x. And what is the meaning of 2x? 2x means 2 times x, 2 बार x। तो ठीक वैसे ही 2 to the power k plus 2 to the power k को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? Yes, 2 into 2 to the power k लिख सकते हैं या नहीं बताओ? जैसे मैंने x plus x को 2x लिख दिया, वैसे 2 to the power k plus 2 to the power k को 2 times 2 to the power k। या फिर तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर हम 2 to the power k में से 2 to the power k कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 plus 1, और 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कभी भी मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 to the 4 गलत होता है, कभी भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अब बताओ मुझे एक बार, दोनों का बेस सेम है और बेस सेम होने के बाद बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, दोनों का बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो पावर का क्या होता है? ऐड होता है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस k लिखो या फिर k प्लस 1 लिखो। दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड। ऑलराइट, ठीक है ना? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 का मैं लास्ट पार्ट एक बार मैं तुम लोग को मौका दे रहा हूं करने का। So note down number 7. So P of n is given to you. This is not decimal, please note down. It is 1 into 2 plus 2 into 2 square. It is not decimal, okay? 3 into 2 cube n into 2 to the power n. And on the right hand side you have n minus 1 into 2 to the power n plus 1 plus 2. So what will be P of k? And in order to get P of a, it's quite simple. You have to replace n with only k. Wherever you get n, you replace n with k. So you get
P of k. Now, may I get response from you all that what will be P of k plus 1? And please don't write this way. I hope you are getting everyone. Don't write this way. Just in order to, just to show you the main steps. I'm just writing down. I'm just writing down few steps just to save time. Okay. I'm not writing down the whole thing because it will take lots of time to write down the same thing. Now let us consider that P of k plus 1 is true. वो सब पता ही है तुम लोगों को, right? I'm just showing you the main steps, right? So can you tell me what will be P of k plus 1? Anyone? It will be at the place of n, just replace k plus 1. So we have 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus एक space बीच में, you know why? Now tell me what will be the result? Yes, what will be the result? And please, it's a request when I'm showing any sum, you look here. अगर तुम्हारा doubt है तो तुम लोग देखो पहले तो पूरा टाइम दे दिया ना सॉल्व करने के लिए. अगर ये डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डाउट अगर है तो पहले तुम्हारा काम है कि जब मैं दिखा रहा हूं तब देखो, अटेंशन पोजीशन पहले इसको देखो पहले, क्योंकि अदरवाइज क्या फायदा होगा बताओ, फिर मैं भी कराएं. ओके, अब बताओ मुझे P of k इतना है तो P of k plus 1 में जहां n है वहां पे हम लोग k plus 1 लगा देंगे. तो मैंने एक स्पेस छोड़ दिया, बट उसके बाद ये जो टर्म है क्या होगा बताओ, मैं तुम लोग से रिस्पॉन्स. सर k plus 1 into 2 to the power k plus 1. अच्छा, ये तरीका ठीक है लिखने का. देखो तो इसमें कोई फॉल्ट है, कुछ इसमें फॉल्ट है? सर k plus 1 में ब्रैकेट होगा. वेरी गुड, k plus 1 में ब्रैकेट होगा. नहीं तो पता है क्या लग रहा था, मैं तो मुझे ये लगता है कि 1 into ऐसे, मतलब 1 सिर्फ 2 के साथ 2 to the power k plus 1 के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, लेकिन ये k plus 1 पूरा प्रोडक्ट फॉर्म है, इसलिए k plus 1 पूरा ब्रैकेट में आएगा. एंड यू नो इसके पहले जो खाली स्पेस है उधर P of k का लास्ट टर्म लिखते हैं. अच्छा, राइट साइड में क्या आएगा बताओगे? यस, राइट साइड में k of सर k plus 1 minus 1. तो एक बात बताओ, अगर हम n की जगह k plus 1 लगा दें तो k plus 1 minus 1 कितना बन जाएगा? सर k, तो k डायरेक्ट बोल दो, k into 2 to the power सर k plus 2. k plus 2 और इधर क्या होगा? फिर प्लस 2 अलग से. ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब हम LHS लेंगे हम लोग. ठीक है, LHS में 1 into 2 2 into 2 square 3 into 2 cube plus k into 2 to the power k plus 1 into 2 to the power k plus 1. और तुमको पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो एक्सप्रेशन मतलब टर्म्स है, यहां से लेके यहां तक का जो टर्म्स है, इसका समेशन क्या है? समेशन है k minus 1 into 2 to the power k plus 1 plus 2, और प्लस के बाद क्या है? k plus 1 into 2 to the power k plus 1. अब देखो एक बार ये तरीका देखो सोचने का, सुनना एक बार, मैं चाहता हूं सबको को बोर्ड पे देखने का तरीका देखो सोचने का यहाँ पे, कि इसके बाद सोचेंगे कैसे. पता है बहुत लोग क्या कर रहा होगा, बिना देखे बिना सोचे समझे इसको मल्टीप्लाई कर रहा होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा. ये नहीं सोच रहा होगा कि लाना क्या है हम लोग को. कभी भी तुम लोग ने ये सोचा कि लाना क्या है पहले? नहीं. और सोचा, और फिर होता क्या सर बहुत टफ है. एक बात बताओ, पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा ना कि अपने लोग को लाना क्या है. देखो लाना क्या है, अपने लोग को दो टर्म्स लाना है. अच्छा, दोनों टर्म में कोई एक टर्म यहाँ दिख रहा है? देखो तो एक टर्म दिख रहा है. कौन सा टर्म दिख रहा है? प्लस 2. अपने लोग कैलकुलेशन में प्लस 2 को क्यों कंसीडर करें? अपने लोग कैलकुलेशन में प्लस 2 को लेके क्यों झमेला और बनाए? प्लस 2 को राइट एक्सट्रीम टर्म, प्लस 2 को राइट एक्सट्रीम टर्म, यू अंडरस्टैंड? राइट एक्सट्रीम टर्म मतलब एकदम इधर लिख देते हैं इस तरह. ठीक है, तो प्लस 2 को इधर लिख देते हैं और कैलकुलेशन में अपने लोग k minus 1 into 2 to the power k plus 1 प्लस k plus 1 into 2 to the power k plus 1 को सॉल्व करते हैं. अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई करने से बेटर ना, वैसे कॉमन है सर 2 into k to the 2 to the power k plus 1 बच जाएगा k minus 1 plus k plus 1 1 कैंसिल हो गया. व्हाट इज k plus k? 2k का मतलब 2 into k होता है. एक ही बात है, 2k लिखो या 2 into k लिखो, बात बराबर है. अब बताओ मुझे लाना क्या है? k into लाना है, तो k into तो है ही ऑलरेडी, और 2 के पावर पे क्या लाना है बताओ तो?
2 के पावर पे क्या लाना है? The 2. k प्लस क्या लाना है? 2। इजीली दिख रहा है मुझे, देखो 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 के पावर k प्लस 1 है, तो 2 के बेस जब सेम है और बीच में इनटू साइन है तो पावर को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2 के पावर पे k प्लस 2 एंड प्लस 2 ऑलरेडी है। तो क्लियर हो रहा है ना, दिमाग में जा रहा है सबको एकदम, लग रहा है ना कि हाँ देखो, इसीलिए मैंने कुछ सोच समझ के ना मैसेज किया था कि देखो तुम लोग करो, लास्ट टाइम मैं बता दूंगा। ऑलराइट, so in question number 8 we have p of n equals to 3 into 2 square plus 3 square into 2 cube plus 3 cube into 2 to the power 4, 3 to the power n into 2 to the power n plus 1, and on the right hand side we have 12 by 5, 6 to the power n minus 1, and this sum is very important। मतलब अगर देखा जाए तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सम है, आई मीन ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल जो भी हमने आज डिस्कस किया, पूरा एक्सरसाइज करके देखा जाए तो ध्यान से एक बार नोट करना। सबसे पहले p of n से p of k कैसे निकलेगा, दैट यू नो, so that's why I want everyone to pay attention if you are not able to do। अगर तुमसे नहीं हो पाया तो सबको एक बार यहाँ पे ध्यान से देखो। उसके बाद p of k को प्रूव करना है। So we have 3 into 2 square plus 3 square into 2 cube plus 3 cube into 2 to the power 4, 3 to the power k plus 1 into 2 to the power, just note down, अगर हम n की जगह k plus 1 लगाए तो 3 के पावर पे k plus 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 के पावर पे क्या आएगा बताओ तो, 2 के पावर पे n की जगह k plus 1 plus 1 कितना हो जाएगा, k plus 2 हो जाएगा। क्लियर है, देखो सब कोई अपने अपने कॉपी में चेक करना क्या ये ऐसा ही है, प्लीज चेक वंस एवरीवन। हाँ सर। हाँ अब सर। देखो ये टर्म के पहले p of k का लास्ट टर्म को लिख दो, ठीक है, तो p of k का लास्ट टर्म इज 3 to the power k into 2 to the power k plus 1। ऑलराइट, अब राइट साइड में क्या होगा, जहां पे n है वहां पे k plus 1। ऑलराइट, नाउ लेट मी टेक LHS। देखो बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे मतलब वेज मतलब स्कूल्स में लाइक ये टीचर्स लोग ना ये जो p of k plus 1 है ना उसमें ये नहीं लिखाते, ये नहीं लिखवाएंगे, देखना तुम लोग देखना ये चीज शायद मिसिंग होगा, डायरेक्ट तुम लोग को ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो एक ही बात है वो तुमको हम समझाने के लिए ये टर्म भी लिख रहे हैं। ओके, अब वो टर्म LHS का हम लोगों ने ले लिया, p of k का p of k plus 1 का LHS। सी यहां से लेकर के और यहां तक हमको सारा टर्म्स, यहां से लेकर यहां तक का टर्म्स का हम लोगों को समेशन पता है। व्हाट इज द रिजल्ट, इट इज 12 by 5 6 to the power k minus 1 plus 3 to the power k plus 1 into 2 to the power k plus 2। देखो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, देखो ध्यान से, प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी, ध्यान। अब हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, इन दोनों में कॉमन लेने का सोचेंगे, लेकिन अभी वो स्टेट में नहीं हम लोग, अभी वो पोजीशन में नहीं हम लोग कि जहां से कॉमन ले पाए। तो देखो एक बार ध्यान से समझिए, 12 into 6 to the power k minus 1 by 5 प्लस, एक बात बताओ ये वाले टर्म को ध्यान से एक बार रफ में देखना है, ये बात को ध्यान से रफ में देखना, क्या मैं 3 to the power k plus 1 को
3 to the power k into 3 to the power 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं, तो यहाँ पे पावर एडिशन फॉर्म में है, तो क्या मैं इसको ऐसे रिवर्स लिख सकता हूँ, मतलब हम इसको 3 to the power k into 3 to the power 1 लिख सकते हैं। सो सेम वे 2 to the power k plus 2 को हम लोग 2 to the power k into 2 square लिख सकते हैं, नहीं बताओ प्लीज चेक कॉन्सेप्ट। मींस अगर Yes, इस sir. स्टेप से इस Yes, स्टेप से ये sir. स्टेप हम आना चाहे, इस स्टेप से हम ये स्टेप आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं, की बात है, 3 to the power k plus 1 2 के पावर पे k plus 2। अब बताना एक बार, सपोज यू हैव 3 to the power k into 2 to the power k, you all know that x to the power n into y to the power n को हम लोग x into y का होल टू द पावर n लिख सकते हैं कि नहीं? अगर दोनों का पावर सेम है तो हम उसको प्रोडक्ट में कॉमन पावर लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके पावर एक बार दे सकते हैं। देखो ये रहा। तो एक बात बताओ, 3 to the power k into 2 to the power k का क्या होगा बताओ तो रिजल्ट? 6 to the Six to the power power k. k. 6 to the power k हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे मान लो सपोज x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, तो इसको x into y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल एग्जांपल। तो वैसे ही यहाँ पे 3 to the power k है into 2 to the power k, तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 into 2 होल टू द पावर k लिख सकते हैं, ठीक वही चीज। अब बताओ तो 3 into 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12. 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 हो गया। तो देखो एक बार यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 6 to the power k, ठीक है, into 12। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मतलब हम इस जगह पे ये 6 to the power k into 12 लिख देंगे। अब बताओ तो मुझे कि ये दोनों में कुछ कॉमन अब दिख रहा है? यस, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? हाँ सर, क्या? सर 12 into 6 to the power k। अच्छा 12 into 6 to the power k दोनों दिख रहे हैं। सर अगर हम लोग उसको मतलब ब्रैकेट ओपन करके 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 6k और -1, तो भी तो यहाँ -12 हो जाएगा, फिर तो कैसे ले पाएंगे? नहीं होगा, सिर्फ 12 है। सिर्फ 12 कॉमन है। सर एक और चीज कर सकता है क्या चाहिए सर, जो सेकेंड लास्ट स्टेप है सर 6k into 12 सर, उसमें into 5 डिवाइडेड बाय 5 करने से सीधा 12/5 कॉमन ले सकते हैं। हाँ वेरी गुड, एक ही बात है, बहुत सही है, तुमने जो बोला एकदम सही है। देखो अपना थोड़ा कैलकुलेशन का प्रोसेस में ना इधर उधर चलता है, तुम्हारा प्रोसेस भी एकदम करेक्ट है जो तुमने सोचा है। ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करके 12/5 कॉमन लेगा, बात बराबर। तो वही चीज आएगा अगर हम इसके बाद एलसीएम ले लेते, जो तुम बोल रहे हो ना वही चीज आएगा अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते। दैट इज 6 to the power k minus 1, 6 to the power k minus 1 plus 5 into 6 to the power k। Is this clear everyone? 1 into this plus 5 into 6 to the power k। अच्छा याद रखना, ये भूल मत करना, बहुत लोग भूल क्या कर देते हैं पता है कि 5 से इधर 30 लिख देते हैं। होगा क्या ये मल्टीप्लाई? कभी नहीं होगा मल्टीप्लाई। समझ में आया बात? कब मल्टीप्लाई होगा बेस? जब दोनों का पावर सेम होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 5 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग 3 5 जा 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां मत मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो हम लोग पहुंच ही गए अपने प्रूफ तक। प्रूफ में अब थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। प्रूफ में 12/5 है, ये रहा 12, ये रहा 5, 12/5 आ गया। ब्रैकेट के अंदर अब देखो, ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन देखो और इसके पहले वाले सम में दिमाग लगाओ, जो भी जस्ट मैंने बताया था इससे पहले। 12/5 आ गया और ब्रैकेट के अंदर 6 to the power k -1 plus 5 into 6 to the power k है। अब कुछ लग रहा है दिमाग में आ रहा है कुछ चीज की, इसके पहले भी हम लोगों ने ठीक इसी तरह का सम किया था। देखो 12/5 आ गया, ब्रैकेट के अंदर मुझे 2 टर्म चाहिए, तो ये दोनों टर्म्स में से एक टर्म मुझे दिख रही है, तो मैं इसको कैलकुलेशन में लेना ठीक रहेगा? एकदम नहीं। मतलब हम -1 को बस ऐसे लिख देंगे, 12/5 6 to the power k plus 5 into 6 to the power k -1। समझ में आया? देखो एक बार, 6 to the power k plus 5 into 6 to the power k -1। ठीक है, अब कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ही बचा है। अब बताओ मुझे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके और ये डालना है, मतलब अपने लोगों को दिया हुआ है 6 to the power k plus 5 into 6 to the power k, तो इन दोनों में कॉमन क्या बताओ? 6 to the power k कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? 1 plus 5। व्हाट इज 1 plus 5 इक्वल्स टू 6। या फिर तुम ऐसे सोचो कि व्हाट इज x plus 5x? 6x। व्हाट इज x plus 5x? इट इज 6x।
ठीक है, एक ही बात है, तुम कैसे भी सोच सकते हो तुम। मतलब हम लोग यहाँ पे 6 to the power k plus 5 into 6 to the power k की जगह पे हम लिख सकते हैं 6 to the power k into 6. And what is 6 to the power k into 6? Tell me, students, tell me what will be 6 to the power k into 6? 6 to the power k plus 1. 6 to the power k plus 1. This is what we have on the right hand side. All right, please copy it. So everyone note down, there is a mistake in just writing, okay? 12 by 5 की जगह यहाँ है 12 by 6. Is correct. Now I think all your doubts, I mean, is almost clear. Like, yes, number 9 is still left, but I'll just tell you one thing कि मैं number 9 का अभी एक बार हम रहने देते हैं number 9, ठीक है, क्योंकि इतना सारा सॉल्व हुआ तो एक बार ट्राई कर सकता था। अब बट एक और मैं बात बताता हूँ, नंबर 9 का मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जरूर बता दूंगा बाद में, बट अभी फिलहाल के लिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, वैसे एक बार कर लेना। LHS निकाल लेना, मतलब LHS जितना तक हो सकता है सिंप्लीफाई कर लेना, और फिर RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेना और देखना मैच कर रहे हैं। फिलहाल ये मेथड तक देख करके देखो, समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। टेक LHS, multiply and simplify as much as you can. Take RHS, multiply and simplify as much as you can. You'll find that both the sides will match. Proved. Later on I'll explain you कि कैसे LHS से direct RHS prove होगा. For timing you just do this way. Now right now we'll do sum number 13 so that you all can try 12, 13, 14, 15 at home and also 16. Okay, so let's start question number 13. So I want everyone कि तुम लोग number 12, which sum did I say? Tell me. तो 30 अच्छा चलो जो भी 13 का, चलो 13 ले लेते हैं। 13 का तुम लोग बेसिक स्टेप कर लो, ठीक है? ओके, ट्राई बेसिक स्टेप। And now I think it is clear that it is not decimal, it is into, right? It is into, not decimal. This is the confusion. So basic step we always take n equals to 1. So LHS will be the first term, which is 1 by 4. RHS will be at the place of input 1. So we have 1 by 3 1 3 plus 1 4. Since LHS is equal to RHS, and it is equal to 1 by 4. So for n equals to 1 is true. Let us take induction step now. Let us assume that P of K be true. So P of K will be at the place of n, just write replace K. So you have 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7. And mark it as equation of 1. Now after this, we have to prove P of K plus 1. I'm not writing them. Now we shall consider that P of K plus 1 is true. Then I'm not writing that directly. I'm writing to prove.
to prove P of k plus 1. And what is P of k plus 1? It is 1 by 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10. Equals space in between and then. Wherever you find n, just replace n with k plus 1. Replace n with k plus 1. N with k plus 1. So you get 3k plus 3 minus 1 is 3k plus 2. हमेशा याद रखना जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना उस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिखना, बट ब्रैकेट मत तोड़ो, ब्रैकेट मत हटाओ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस ब्रैकेट के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन कर दो तो ये 3k plus 4 हो जाएगा। इसके पहले कौन सा टर्म आएगा? p of k का लास्ट टर्म। और उसके बाद राइट साइड में आ जाएगा k plus 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? k plus 1 और डिनोमिनेटर में सर 3k plus 4 3k plus 4। वेरी गुड, ठीक है। k की जगह k plus 1, 3 और ब्रैकेट में k plus 1 तो 3k plus 1, मतलब ये चीज आएगा plus 1 plus 3k plus 1। अब हम लोग LHS लेंगे। यहां से लेकर के और यहां तक जितना टर्म्स है ये सारा टर्म्स का मुझे वैल्यू पता है k by 3k plus 1 plus all right, now take LCM and simplify this। यहां से एक बार कॉपी करो। so please everyone note down p of k plus 1 में मैंने एक जगह गलती की है कि अगर मैं इस k के जगह पे n के जगह k plus 1 लगाऊंगा, आई थिंक नो कोई कंफ्यूज नहीं हुआ है। 3k plus 3 minus 2 ये 3k plus 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3k plus 4, ठीक है। ये थोड़ा एक बार चेक कर लेना सबको यहाँ। इसलिए यहाँ पे 1 मैंने दिमाग में ना ये 2 के बदले 1 कंसीडर कर लिया था, इसीलिए ये प्रॉब्लम आया था। ओके, आई डोंट नो ये कैसे करके प्रॉब्लम आया। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, प्लीज करेक्शन कर लेना सबको। आई होप नो वन गॉट कंफ्यूज्ड। किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ ना? देखो सिंपल सा बात है, जहां पे n है वहां पे k plus 1 लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम k plus 1 लगाते हैं तो 3k plus 3 minus 2 सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 3k plus 1 आ जाएगा। ये और यहाँ पे n के जगह पे अगर हम k plus 1 लगाते हैं तो ये सॉल्व करके 3k plus 4 आ जाएगा। ये सही है, राइट साइड भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ था ये जगह पे 3k plus 1। अब देखो सम बहुत इजीली सॉल्व होगा और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन। बताओ तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 by 3k plus 1, तो बच जाएगा k by 1 plus 1 by 3k plus 4। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दिस। If you factorize this numerator, can you tell me what is the result after factorization? Tell me directly. Factorize किया है? 3k plus 1 into k plus 1.
करेक्ट 3k plus 1 कैंसिल हो गया तो बच्चा k plus 1 by 3k plus 1 which is equal to RHS. Okay, clear everyone? So Yes, sir. now I am 100% sure that you all will be able to do all the sums of this exercise 8a except please note down, please don't do that sum जो मैं बोल रहा हूं नहीं करने के लिए, that is number 17 मत करना, ठीक है 17 नहीं करना है। और 9 का जैसे मैंने बोला समझ में आया तो LHS लेना, उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देना, फैक्टराइज नहीं होगा देखना अभी, मतलब तुम लोग को मेथड नहीं पता कैसे फैक्टराइज करना, तो पूरा सिंप्लीफाई कर देना, RHS को भी पूरा सिंप्लीफाई करना और देखना इक्वल आ जाए, मैं बताऊंगा बाद में कैसे करके फैक्टराइज करना। एंड बाकी और सारा होमवर्क है बाकी सब। और मैं ये भी बोलूंगा कि जैसे कि लाइक लास्ट डे 95% डाउट ही था बहुत लोगों का, सो इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to क्या था 16 था शायद, जब पूरा 16 तक सारा सम वापस से कर। सो आई विल आस्क एवरीवन टू रिपीट ऑल द क्वेश्चंस टिल नंबर 50। जिन लोगों का नहीं हुआ था, जिन लोगों का हो गया था बहुत बढ़िया, बट लगभग बहुत लोग का ही डाउट था, तो सारा सम्स रिपीट कर लो 16 तक। सो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द क्लास।